Assalamu alaikum everyone. Thank you for joining us today at the SSCP and ACCA session. My name is Ali Shan ul Haq. I am the Business Development Manager at ACC Pakistan. As you all are aware, ACCA has an MOU signed with the Securities and Exchange Commission of Pakistan, whereby we conduct investor education awareness sessions at multiple settings for students, affiliates, members, employers, and our learning partners as well. So today we are conducting a session on the topic microfinance industry in Pakistan, and the session is going to be conducted by Mr. Syed Murtaza Abbas Naqvi, who is a joint director at the Securities and Exchange Commission of Pakistan. So I would like to invite Mr. Naqvi to join us. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, ACCA, all the members, welcome. Thank you, Ali, for a very generous introduction. As you guys are aware that SCCP and ACCA has signed an MOU to increase and spread the investor awareness on different financial topics. Our today's topic is about the microfinance industry in Pakistan, and we'll briefly see that how microfinance works, what are the benefits, what are the regulatory requirements to have a microfinance company, what are the microfinance institutions, how do they operate, and what SCCP is doing to promote microfinance. So as usual, first of all, a little disclaimer that this information is only for the purposes of awareness only, and if by chance, if I take any name, this will only be for the purposes of the examples only, and should not be taken as an example for any investment advice or anything. If you want to properly do something, please consult the regular departments and take necessary details before you step into the ACCA, into the microfinance business. So first of all, the most important thing is what you should need to know is what is microfinance. आपको ये इल्म होगा कि finance conventionally are done by the banks, or banks are the primary mortgage lenders or primary consumer lenders in almost all the economies. The problem with the passage of time arises that there are many areas of an economy, there are lower income stratas which are not accessible to the conventional financial modes. There are so many informal income groups which cannot access the formal sector for regular access to their finances. So in order to cater that need, microfinance emerged as a natural need for the economy and the society. So microfinancing, very simply stating, is any finance provided to a poor person or a micro enterprise. That will be considered as a microfinancing. आगे हम regulations में देखेंगे कि how we define poor. What do you mean by poor? आप poor कहते हैं किसको है ये? So basically, it's a supply of loan and financial services to the poor strata of the economy. And people living in poverty, they have their different needs like we do have, but what they need is most of the times is sustainability and continuity of their daily life routines. For instance, उनको business करना है, छोटे level के ऊपर कर रहे हैं, कुछ stock खरीदना है लेकिन पैसे नहीं है उनके पास. उनके पास consumption के लिए उनको ये नहीं पता कि एक महीने के बाद या 15 दिन के बाद उनके पास होगा भी कि नहीं होगा. वो अपना stock छोटे से दुकानदार पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. अगर health के issues आ जाएंगे तो क्या वो लोग proper health care ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे. इसी तरह वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं. अब आपको भी वर्किंग कैपिटल एज एन अकाउंटेंट शायद आप सोच रहे होंगे कि बहुत बड़ी कंपनीज का वर्किंग कैपिटल है. प्रैक्टिकली एक ठेला लगाने वाले को अगर सब्जी डालनी है तो उसको शायद 20-25 हज़ार रुपए चाहिए कि वो ताजी सब्जी मंडी से लाए और आज सुबह वो ले और शाम तक उसको वो कुछ कर सके, और इवन 10-15 हज़ार रुपए उसको मंडी से चाहिए. तो इनको इस किस्म की नीड्स चाहिए होती हैं, और ऐसी एक बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं हमारे आसपास. लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये फॉर्मली बैंक्स के पास जाके फाइनेंस एक्सेस नहीं ले सकते. ये अगर जाएंगे भी तो शायद बैंक्स इनको कभी भी एंटरटेन नहीं करेंगे. सो दैट इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कि जिसकी वजह से माइक्रो फाइनेंस आया. पुअर हैव दे सिंस द फॉर्मल सेक्टर इनको एड्रेस नहीं करता. ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है. जब फॉर्मल सेक्टर इनको एड्रेस नहीं करता, सो व्हाट दे डू इज दे नीड टू गो फॉर प्राइवेट फाइनेंसिंग. लोगों से उधार लेना, कमेटी डालना, मोहल्ले वालों से, रिश्तेदारों से पैसे कलेक्ट करना, बीवी का जेवर बेचना, कैटल बेचना, और एट टाइम्स अगर हालात खराब हो तो अपने घर और अपने एसेट्स को भी सेल ऑफ करना पड़ता है जस्ट टू कैरी ऑन विद दिस थिंग. ये ओवरऑल प्रॉब्लम ये रहती है इसके अंदर कि जब आप इनफॉर्मल सेक्टर में जाते हैं तो यू आर वल्नरेबल टू सो मेनी रिस्क व्हिच कैन बी इजीली अवॉइडेड इफ यू आर गेटिंग द फाइनेंसेस थ्रू अ फॉर्मल सेक्टर.
और हमारे माशरे में जो नॉन फाइनेंशियल सप्लायर्स हैं वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत बड़ी है हमारी। सो माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराने का मकसद ये था कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ लाया जाए। हमारे वो लोग जो कि अभी तक फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर सकते, उनको ये चीज प्रोवाइड की जा सके। जनरली जितने भी ये फाइनेंशियल सेक्टर में लोग माइक्रो फाइनेंस में लेंडिंग प्रोवाइड करते हैं, इसमें आपने कभी कोऑपरेटिव्स का नाम सुना हो, आपने सुना हो अक्सर जहां डोनर सपोर्टेड प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, यानी कि डोनर मौजूद होता है, वो आता है, एक प्रोग्राम को सपोर्ट करता है, वो प्रोग्राम 4 साल 5 साल चलता है, और जैसे ही डोनर चला जाता है वो प्रोग्राम जो है वो फिर बैठ जाता है, सस्टेनेबल नहीं रहता। सो माइक्रो फाइनेंस को बाकायदा एक इंडस्ट्री बनाने का मकसद ये है कि सस्टेनेबल माइक्रो फाइनेंस मार्केट डेवलप की जा सके, यानी कि आप प्रॉफिट भी कमाइए, ताकि कल को अगर आपका डोनर चला जाता है, आपकी फंडिंग लाइंस, आपकी क्रेडिट लाइंस मैच्योर हो जाती हैं और वो ड्राई अप हो जाती हैं, तो कम से कम आप अपना सारा निजाम उसको कंटिन्यू कर सकें फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट हमारे यहाँ लोग करते हैं। आप देखते हो कि हमारे यहाँ चैरिटी का बहुत बड़ा निजाम है। हमारे यहाँ लोग वैसे बहुत पैसा दे देते हैं रिश्तेदारों में, जानने पहचानने वालों में। ये एक तरह की हम लोग फाइनेंशियल एड कर रहे होते हैं, मगर इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी पाकिस्तान के अंदर हैं और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी पाकिस्तान के अंदर हैं, जिनको फॉर्मली ये टास्क दिया गया है कि वो आए और फॉर्मल सेक्टर को डेवलप करें। माइक्रो फाइनेंस की एवोल्यूशन अगर आप देखो तो कन्वेंशनली, ट्रेडिशनली क्या होता था कि ये एक अनरेगुलेटेड सेक्टर था। ज्यादातर मकसद ये होता था लोगों की मदद करना, पॉवर्टी एलिवेशन की तरफ जाना। डिलीवरी चैनल्स ट्रेडिशनल थे, मोहल्ले वाले से पैसे ले लिए, गांव के चौधरी से पैसे ले लिए, किसी अमीर रिश्तेदार से पैसे ले लिए, कमेटी डाल ली, दोस्तों ने मिलके किसी की सपोर्ट कर दी। ये हमारे ट्रेडिशनल चैनल्स हमारे इकोनॉमी के अंदर रहे हैं। और ज्यादातर जो होती थी वो ग्रुप लैंडिंग होती थी, मतलब एक आदमी कभी नहीं कर पाता था, वो 4-5 लोग मिलके किसी की हेल्प कर देते थे। इस सारी फिलोसफी में ओवर द पीरियड कुछ चेंज आया है। अब हुआ क्या है कि माइक्रो क्रेडिट माइक्रो फाइनेंस में गया, तो आप देख रहे होंगे कि ये रेगुलेटेड होना शुरू हुआ। ये रेगुलेटेड हुआ, इसमें एक्सेस टू फाइनेंस को फॉर्मल बनाया गया, इनफॉर्मल की जगह इसको फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर लेकर आए। फिर बैंकिंग ब्रांचलेस हुई, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ज्यादा तवज्जो दी गई कि यार प्रोडक्ट ऐसा हो जो सस्टेन कर सके, खुद के लिए भी और मार्केट के लिए भी। और फिर डाइवर्स लैंडिंग मॉडल्स आ गए। जरूरी नहीं था कि किसी एक मॉडल के ऊपर फोकस किया जाए, बल्कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट नीड्स को केटर करने के लिए डेवलप किए गए। तो इससे हम लोग ज्यादा लोगों की नीड्स भी पूरी कर रहे हैं और लोगों को एक वैरायटी मिल रही है कि वो कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवर द पीरियड जो फाइनेंशियल इंक्लूजन दुनिया में इमर्ज हुई, पाकिस्तान ने भी इसको अडॉप्ट किया और हमारे यहाँ एक नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटेजी मौजूद है जिसको हम NFIS कहते हैं। उसका बुनियादी मकसद ये है कि आपका जो ज्यादातर लोगों को फॉर्मली फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूड करवाया जा सके। उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो बेसिकली कमर्शियल बैंक्स ने प्ले किया। टेलकोस की जब डेवलपमेंट हुई, आज आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। मतलब आप किसी भी तबके में चले जाइए, अमीर गरीब, लेकिन आपको मोबाइल का यूजर जरूर मिलेगा। तो टेलकोस की जो जो ग्रोथ हुई है उसने एक बहुत बड़ा हेल्प किया। आपने इजी पैसा का नाम सुना होगा, आपने जैज कैश सुना होगा, और बहुत सारे ऐसे आए हैं प्रोडक्ट्स आए। तो उसमें फिर मनी ट्रांसफर आसान हुई, कैश ट्रांसफर आसान हुई। इसके साथ साथ फिर माइक्रो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आ गया। और इस सारी सारी चीजें, जो चीज सबसे ज्यादा हेल्प आउट की वो ये की कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत कम हो गई। पहले आपको कोई ब्लेंडिंग करनी है, आपको एक इदारा बनाना है, उसकी ब्रांच खोलनी है, ब्रांच का किराया देना है, बिजली पानी गैस एम्प्लॉइज, इन सारे खर्चे आपको करने हैं। लेकिन विद द इमर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी ये बहुत सारे मामले एड्रेस हो गए। तो जब आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाएगी तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और आप ज्यादा बेहतर तौर पर सस्टेन कर सकोगे। अगर आप पाकिस्तान क्या देखो तो हमारी हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट बहुत सब्सटेंशियली बढ़ी है, और हम 2020 तक अगर आप देखो तो हम 200 बिलियन प्लस के उसके अंदर जा रहे हैं। रिक्वायर्ड उसकी जो मार्केट डेप्थ है वो इतनी मौजूद है। और ये सारी की सारी चीजें ये शो कर रही हैं कि अभी हमारे पास, मैं आपको कुछ फिगर्स दिखाऊंगा कि हमारी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर तकरीबन 26 प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि नॉन बैंकिंग माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के तौर पे काम कर रही हैं। बट स्टिल देयर इज अ वेरी वेरी ह्यूज गैप जिसको अभी हम केटर कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन का इसके साथ लिंक इस तरह बना, वैसे तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा बैंक्स का एक्सेस होता था, लोग बैंक को ही फाइनेंशियल सेक्टर समझते थे। लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन में की डेफिनेशन जब आई तो उसमें उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन मींस दैट हाउसहोल्ड्स एंड बिजनेसेस हैव एक्सेस and can effectively use appropriate financial services. Such services must be provided responsibly and sustainably in a well-regulated environment. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन से मुराद ये रही है हमेशा से, ऐसा नहीं है कि हर एक को इन्वॉल्व कर लिया जाए।
सबको इन्वॉल्व किया जाए, मगर दो बातों को मद्देनजर रखें। एक तो ये कि रेगुलेटेड तरीके से करें, दूसरी बात ये कि सस्टेनेबल हो। अनरेगुलेटेड आप लोग आजकल FATF सुन रहे होंगे, आप लोग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से सुन रहे होंगे, ये सारे तहफुजात इंटरनेशनली इमर्ज हो रहे हैं और पाकिस्तान अपने जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में इन सबको अकाउंट फॉर कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि लोग आए मगर रिस्पॉन्सिबली आए और रेगुलेटेड तरीके से आए। माइक्रो फाइनेंस का बेनिफिट अमूमन होता क्या है? जितने भी माइक्रो फाइनेंस के बेनिफिट्स हैं वो बेतहाशा हो सकते हैं, मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन है। आपने कभी सुना हो कि एक अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, हमारे पाकिस्तान में हमारी जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, अगर आप उसका फिगर देखिए और कभी उसको कंपेयर करके देखें कि पाकिस्तान की अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी कितनी है, तो मैं शायद यकीन से तो ना कह सकूं, बट बहुत हद तक मुझे इस पे यकीन है कि आपको ऑलमोस्ट बराबर बराबर मिलेगी। अगर हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में डॉक्यूमेंटेड पैसा 100 रुपए का मूव कर रहा है, तो आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के अंदर लेस और मोर 100 और 110 रुपए मूव कर रहे हैं। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है इसको डॉक्यूमेंट का पार्ट बनाएं। ट्रांजेक्शंस में अगर आप देखो तो अगर आप पैसा यहां से बाहर भेजते हो बैंक के थ्रू, तो वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। वही पैसा हुंडी के थ्रू भेजोगे तो जाएगा तो शायद उससे ज्यादा पैसा, लेकिन वो डॉक्यूमेंट कभी नहीं होगा, कभी इकोनॉमी में चैनल नहीं हो पाएगा, कभी फाइनेंशियल सर्विसेज का पार्ट नहीं बनेगा। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का बुनियादी मकसद ये होता है कि ज्यादातर लोग फॉर्मल चैनल्स के थ्रू आए, और उसमें माइक्रो फाइनेंस जो होता है वो बड़ा क्रिटिकल होता है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है बेनिफिट्स के, ये उन लोगों को क्रेडिट का एक्सेस देता है जिनको आम कन्वेंशनल चैनल्स एंटरटेन भी नहीं करते। एक्सेस तो दूर की बात है, उनको फैसिलिटी देना तो दूर की बात है, उनको एंटरटेन भी नहीं करते। माइक्रो फाइनेंस का मोस्ट लाइकली अगर कोई क्लाइंट किसी बैंक के दरवाजे पे चला भी जाए तो उसको कोई वो जो उसके बैंक के पैरामीटर्स हैं, क्योंकि बैंक्स आर कन्वेंशनली वेरी कंजर्वेटिव, वो उनको बाईपास ही नहीं कर, उनको क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। तो कभी वो बैंक से लोन ले नहीं पाएगा। जब वो बैंक से लोन नहीं ले पाएगा तो उसको फिर अल्टीमेटली जाना पड़ेगा वही पुराने तरीकों की तरफ, और वो हमेशा जो रिकॉर्डेड इकोनॉमी है, जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, उससे सारी जिंदगी बाहर ही रहेगा। तीसरी बात ये है कि ये उन लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी में जो अंडर सर्व्ड है, बहुत पुअर तबका, बहुत कम लोग, जिनको इवन एक जमाने में तो हम शायद तालीम को भी अहमियत समझते थे, मोबाइल के आने के बाद शायद तालीम भी अब मोबाइल के ऊपर आ गई है। किसी को शायद पढ़ना लिखना ना आता हो मगर उसे मोबाइल यूज करना आता है। सो अगर वो अपना मोबाइल यूज कर सकता है तो उसकी वेरिफिकेशन अब मोबाइल के थ्रू हो सकती है, उसका वेरिसेस चेक हो सकता है, उसके क्रेडेंशियल्स चेक हो सकते हैं, उसकी क्रेडिट वर्दिनेस चेक हो सकती है, फेसबुक से उसके ट्रेंड्स पता लग सकते हैं, उसकी बाइंग पावर पता लग सकती है, उसके बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप कर सकते हैं। सो अब कई कंपनीज तो ऐसी हैं जो कि आपके इंटरनेट के डेटा यूजेज की बेसिस के ऊपर, आप क्या लाइक डिसलाइक कर रहे हो, उन ट्रेंड्स के ऊपर आपकी क्रेडिट असेसमेंट कर लेते हैं कि वेदर यू आर वर्थ इट और यू आर नॉट वर्थ इट। सो सिमिलरली ये एक और जब आपके उन स्टार्टअप्स को टच करता है तो फिर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा जनरेट होती है, वाइड स्प्रेड होती है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन किसी एक इलाके में नहीं रह जाती। और जिनको हम कहते थे ना ये बड़े शहर हैं सिर्फ, अब बड़े शहरों का तस्वर खत्म होना शुरू हो जाएगा, छोटे इलाकों में भी फाइनेंस पहुंचेगा, पैसा पहुंचेगा, कैपिटल पहुंचेगा, वहां इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने लेवल पे जनरेट होगी। पॉवर्टी एरेडिकेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी एक विशियस साइकिल है, आप लोग अकाउंटेंट हो, मुझसे बेहतर समझते हो। तनख्वाह कम, आज ही मैं कहीं देख रहा था, कहीं चाइना का मैं कहीं पढ़ रहा था कि वो जो भी मसाइल है उनके, तनख्वाह कम, ग़िज़ा खराब, ग़िज़ा खराब तो सेहत खराब, सेहत खराब तो जॉब्स का ना मिलना, पढ़ाई पूरी ना कर पाना, अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब पे पूरा टाइम ना दे पाना, वो हर चीज उसके साथ एक विशेष साइकिल में चलती है। सो अगर हम इस विशेष साइकिल के अंदर थ्रू माइक्रो फाइनेंस किसी को टाइमली हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दें, किसी को टाइमली अच्छी एजुकेशन दे दें, तो वो सारे विशेष साइकिल में फंसने से पहले ही बच जाएगा। सो पॉवर्टी एरेडिकेशन में इसका बड़ा काम होता है। फिर एक और आखिरी, नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज द सोशल डेवलपमेंट। ये चीज अमूमन गवर्नमेंट्स के खाते में आती है। जब हम सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट्स आर मेंट टू फैसिलिटेट फॉर फलाह व बहबूद, उसके लिए काम करती है। सोशल डेवलपमेंट का जो कॉज है वो जितना बेहतर माइक्रो फाइनेंस के थ्रू एड्रेस हो सकता है, मेरा नहीं ख्याल किसी और कन्वेंशनल चैनल से हो सकता है, क्योंकि आप सोशल डेवलपमेंट में उन एरियाज को टच कर रहे होते हो जिनको कोई रिफ्ट नहीं करा था। सो ये एक तरह से गवर्नमेंट की भी जो 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 पॉवर्टी एलिवेशन की जो पॉलिसीज होती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए माइक्रो फाइनेंस एक बहुत बहुत ही इफेक्टिव टूल है। जनरली माइक्रो फाइनेंस के क्लाइंट्स होते कौन है? ये बड़े बिजनेसमैन नहीं होते, ये इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होते, ये आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि अक्सर, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, बड़ी इंकरेजिंग चीज रादर ये है कि इसमें विमेन एम्पावरमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको वाइड स्प्रेड वर्ल्ड वाइड भी देखोगे तो माइक्रो फाइनेंस के मेजर यूजर्स में से आपको विमेन मिलेंगी छोटे लेवल पे।
वो छोटा खाड़ी का काम कर रही हैं, घरों में बर्तन बना रही हैं, छोटी मोटी जरूरत के लिए उन्होंने पैसा लिया और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और दे आर प्रैक्टिकली कॉन्ट्रीब्यूटिंग। तो वो जो वर्किंग वुमेन का कॉन्सेप्ट आज हमारे बड़े शहरों में है, उससे कहीं ज्यादा डेवलप मॉडल कहीं रिमोट एरियाज में रखा हुआ है, जहां खातून अपने हस्बैंड के लिए वो बर्तन बनाती है और वो हस्बैंड जाके बर्तन बेचता है, या उसको वो सब्जी उगा के देती है और वो सब्जी मार्केट में जाके बेचता है, या वो शॉल सीती है और वो मार्केट में जाके बेचता है। तो वर्किंग वुमेन और सही बिजनेस क्लास का जो कॉन्सेप्ट है, कम से कम छोटे लेवल पे, कभी आप रिमोट एरियाज में जाइए तो आपको वहां बहुत प्रैक्टिकली होता हुआ नजर आएगा। फिर कई डिस्प्लेस्ड लोग हैं, कई रिट्रेंच वर्कर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, जिनके पास थोड़ा थोड़ा चीजें हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि अब तो किसी को अगर अगर एक आदमी बैलों के थ्रू खेती बाड़ी करता था, उसको थोड़ा टाइम पे पैसा मिल जाए, लोन मिल जाए और उसको क्रेडिट के ऊपर अगर एक ट्रैक्टर मिल जाता है, ये भी मैं एक बड़ी एग्जांपल दे रहा हूँ मगर फिर भी समझाने के लिए कह रहा हूँ, तो ट्रैक्टर से जितनी एफिशिएंटली वो ये काम कर सकता है, उसे ट्यूबवेल मिल जाए, उसे वक्त पे खाद डालने के लिए पैसे मिल जाए, उसको स्प्रे करने के लिए, जैसे पानी के अगर सुंडियां आ जाती हैं और उसकी फसल खराब हो जाती है और उस स्प्रे के लिए उसको पैसे मिल जाए, तो वो ये सारे काम माइक्रो फाइनेंस के थ्रू कर सकता है। ये पुअर को हेल्प किस तरह करती है? पुअर की हमें ये समझाना, इसलिए बार बार पुअर का जिक्र इसलिए करना पड़ता है कि ये फाइनेंशियल सर्विसेज अमूमन जितना भी फाइनेंशियल सेक्टर है वो बड़े एरियाज को जरूर कैटर करता है, बड़ी कैपिटल नीड्स को करता है, कैपिटल इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज है उनको सपोर्ट कर रहा होता है या इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहा होता है। इन लोगों के साथ जो पुअर का जो सर्कल है ये इतना बड़ा है कि इसमें तकरीबन पूरे लाइफ साइकिल्स, क्या पूरी पूरी जनरेशंस खत्म हो जाती है लोगों की। तो अगर कोई भी इकोनॉमी, कोई भी गवर्नमेंट अपने पुअर स्ट्राटा को डेवलप कर ले, तो आप ये समझिए कि आपने एक लॉट तैयार कर लिया, आप ह्यूमन कैपिटल आपने तैयार कर लिया जो कि आपके ओवरऑल जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने के काबिल हो गया। तो पुअर पीपल दे डू नॉट हैव एक्सेस टू सेविंग्स, इनको इंश्योरेंस कोई नहीं देता, बट एट द सेम टाइम दे आर मोर रेजिलिएंट एंड एबल टू कोप विद द एवरीडे क्राइसिस। इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं कि जितना कम नॉन परफॉर्मिंग लोन्स का रेशियो माइक्रो फाइनेंस में है, उतना आपको किसी और सेक्टर में नहीं मिलेगा। ये वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा अपने लोन्स टाइमली पे ऑफ करते हैं। अगर आप इंडस्ट्री का डेटा देखें तो उसमें 99% तक रिकवरी है कि आपने किसी को लोन दिया और वो आपको वापस करे, ये 99% टाइम्स हो रहा है। 1-8% मौजूद होता है मार्जिन, उसके लिए भी बहरहाल इंश्योरेंस है जिसके थ्रू आप कवर कर सकते हो। तो आप एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सोचो कि आप लेंडिंग कर रहे हो और आपको पता हो कि मुझे 99% रिकवरी हो जाएगी, तो आपका रिस्क कितना रिड्यूस हो जाता है। इंश्योरेंस मिलना, इनको हेल्थ फैसिलिटीज मिल सकती है, इनके एसेट्स बेचने की नौबत नहीं आती इनको। ये लोग जो है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज से फायदा उठाते हैं। कई दफा ऐसा होता है, आपको अगर मैं अकाउंटिंग के टर्म्स में बताऊं, आप लोग वर्किंग कैपिटल पढ़ते हो, बाज दफा बहुत सी फर्म्स बड़ा ऑर्डर इसलिए नहीं लेती क्योंकि इतना वर्किंग कैपिटल नहीं होता। मेरे पास 1 लाख टी शर्ट्स का ऑर्डर आ गया मगर मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं वो ऑर्डर बुक कर सकूं। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज छोटे लेवल पे जब आती हैं तो छोटा आदमी कई दफा इसलिए वो काम नहीं कर पाता बिकॉज उसके पास वर्किंग कैपिटल नहीं होता। तो माइक्रो फाइनेंस उसको वो पैसे दे सकता है, ठीक है तुम ये काम करो, अगर अपॉर्चुनिटी आई है ये पढ़ लो, काम करो, कमाओ और पैसा वापस करो और अपनी इकोनॉमी को भी सपोर्ट करो, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करो। ये वल्नरेबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो लोग सर्वाइवल मोड से निकल जाते हैं। पुअर स्ट्राटा ये जिंदगी भर सर्वाइवल मोड में होता है कि आज कैसे गुजरेगी, कल कैसे गुजरेगी। सो आप इनको अपलिफ्ट कर रहे हो कि आप सर्वाइवल मोड से निकल के प्लानिंग और थ्राइविंग मोड की तरफ लेके जा सकते हो। इनकी अर्निंग्स बढ़ने से इनके हेल्थ सेक्टर और वुमेन एम्पावरमेंट में इजाफा होता है। अब अमूमन लोग ये सवाल करते हैं कि ये लोग इतना अच्छा या इतना टाइमली पे क्यों करते हैं। शायद आपके ज़हन में आए कि भाई ये हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ये है कि भाई वापस करेगा कि नहीं करेगा, हम पैसा देते हुए 10 दफा सोचते हैं। ये लोग इतने आराम से या इतना सीरियसली पैसा वापस क्यों करते हैं? अमूमन बैंकों के पास जो वो कोलेट्रल रखता है, ये बगैर कोलेट्रल के काम हो रहा है। डिफॉल्ट्स आपको बैंकों में मिल जाएंगे, डिफॉल्ट्स आपको बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मिल जाएंगे, इनमें 91% डिफॉल्ट मिलता है आपको। इसकी बुनियादी वजह ये होती है, फॉर पुअर पीपल दिस इज देयर ओनली चांस टू गेट बैक इनटू लाइफ एंड दे डू नॉट वांट टू मेस अप विद दिस थिंग। जब उनके पास एक ही चांस होता है तो वो उसको मेस अप नहीं करना चाहते। अगर आप ग्रामीण बैंक का मॉडल पढ़े जो डॉक्टर यूनुस ने किया, जिसके बाद उनको नोबेल इनाम भी मिला, तो आप बहुत अंदाजा करोगे कि वहां पे सोशल गारंटी के कॉन्सेप्ट ने पूरी इकोनॉमी को उठा दिया। मिसाल की नीचे कि हम एक ही सोसाइटी में रहने वाले 5-10 लोग हैं, हमने लोन हमें सिर्फ 3 लोगों को मिला है और हम 3 के ऊपर एक सोशल प्रेशर ये है कि चौथे आदमी को लोन उस वक्त मिलेगा जब पहला आदमी पे ऑफ करेगा। तो अब मैं आपकी तरफ देखूंगा कि आप पे ऑफ कीजिए ताकि मेरा नंबर आए।
5वें आदमी को लोन उस वक्त मिलेगा जब दूसरा आदमी पे ऑफ करेगा, 6ठे आदमी को लोन उस वक्त मिलेगा जब तीसरा पे ऑफ करेगा। तो वो सारे एक कम्युनिटी में रहते हुए सोशली एक दूसरे के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, और इसीलिए वहां पे कोई डिफॉल्ट भी नहीं होता। सो इनकी जो सोशल बॉन्डिंग है, ये एक नॉन फाइनेंशियल मॉनेटरी कोलेटरल का काम करती है, और लोग इसके लिए पे ऑफ करते हैं उनके साथ। माइक्रो फाइनेंस का सिर्फ ताल्लुक लोकल नहीं है, इट्स नॉट ओनली कि हम लोकल बात कर रहे हैं, इंटरनेशनली भी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो थे वो यूनाइटेड नेशंस ने बनाए थे, और जिसमें कुछ बड़ी बातें ये थी कि पॉवर्टी को एरेडिकेट करेंगे, प्राइमरी एजुकेशन इंक्रीज हो, जेंडर इक्वालिटी आए, एम्पावरमेंट आए, डिजीजेस को कॉम्बैट किया जाए, इन्वायरमेंट को सस्टेन करवाया जा सके, और पार्टनरशिप डेवलप की जा सके। सो माइक्रो फाइनेंस का ताल्लुक सिर्फ आपकी लोकल इकोनॉमी के साथ नहीं है, बट somehow you are going to connect with the millennium goals of the overall world. आप उनके साथ भी कनेक्ट हो रहे होते हैं। नाउ माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइडर होता क्या है, ये करता क्या है? ये कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज देती हो पुअर लोगों को। इसमें इनका लीगल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि कोई एक खास तरह की कंपनी हो वही ये काम कर सके। इनका लीगल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, इनका मिशन डिफरेंट हो सकता है, इनकी मेथोडोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, इनकी बैंकिंग का तरीका, इनका लैंडिंग का तरीका डिफरेंट हो सकता है, मगर इनकी जो कॉमन चीज होगी वो ये होगी कि इनकी क्लाइंटेल पुअर स्ट्राटा रहेगा हमेशा। माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइडर्स जो होते हैं ये दे आर सब्जेक्ट टू जनरल लॉज। इसमें बैंक्स भी हो सकते हैं, अगर आप एक बैंक को माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइडर समझ देख रहे हैं तो वो बैंकिंग लॉज के तहत गवर्न हो रहा होगा। अगर एक माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइडर जो है वो एनबीएफसी है तो एससीसीपी के पास आ रहा होगा, सेक्शन 42 की कंपनी है तो वो भी एससीसीपी के पास आ रही होगी। इनफॉर्मल में बहुत से लोग ट्रस्ट वगैरह बनाते हैं, वो भी इसके अंदर आ रहे होते हैं। ओनरशिप स्ट्रक्चर इनके बदल सकते हैं, ये गवर्नमेंट बेस्ड भी हो सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, ये प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, और ये नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकते हैं। लेकिन इनका फोकस जो होगा वो फाइनेंशियल मार्केट को, मार्केट डेवलपमेंट की तरफ होगा, सोशल सर्विसेज की तरफ होगा, असिस्टेंस की तरफ होगा, मेन स्ट्रीम से हट के साइड लाइंस को डेवलप करने की तरफ इनका फोकस होगा। और सर्विसेज जो होंगी उनकी जितना भी है उसमें नॉन कोलेटराइज्ड माइक्रो लोन देंगे। आप माइक्रो फाइनेंस का जब भी देखोगे उसमें अमूमन कोई कोलेटरल नहीं होता, क्योंकि गरीब आदमी के पास इतना बड़ा कोलेटरल होता नहीं है जिसके अगेंस्ट वो लोन ले सके। सो इन ऑर्डर टू कवर दैट, जो माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइडर्स हैं वो इनसे काफी अच्छा हैंडसम किस्म का एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि इतना हाई इंटरेस्ट रेट जो है ये वो क्यों चार्ज कर रहे हैं? एक गरीब आदमी है, वो उससे आप अगर कहते हैं मुझे 35% पे मैं तुम्हें लोन दूंगा या 40% पे दूंगा, तो उसको अगर वो 100 रुपए आपसे ले रहा है तो उसको 140 रुपए वापस करने हैं, तो ये तो काफी हाई इंटरेस्ट रेट है, राइट? लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिकल साइड देखो तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि सस्टेनेबिलिटी माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइडर की बड़ी इंपॉर्टेंट है। माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइडर्स जो होते हैं उनका कन्वेंशनल मॉडल ये होता है कि उन्हें कोई पैसे देता है, वो पैसे आगे डिस्पर्स करते हैं। अब अगर वो पैसा डोनर दे रहा है और वो फ्री का है और वो ग्रांट है, तो फिर तो वो जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइडर है, माइक्रो फाइनेंस वो फ्री में आगे बांट सकता है। लेकिन स्टिल ये मॉडल इतना अच्छा ना रहे, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपका डोनर पीछे से चला जाएगा उस दिन आप क्या करोगे? तो इसके अलावा दूसरी लाइंस आपके पास बैंक्स के होती हैं, कई और बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आपको लेंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। आप क्या करते हैं कि जो पैसा वहां से आ रहा है एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आता है, आप उसको टॉप अप करते हो, उसके ऊपर फर्दर इंटरेस्ट चार्ज करते हो और उसको आगे आम आदमी को दे देते हो। लेकिन क्योंकि आप उससे कोई कोलेटरल नहीं ले रहे होते, तो आप अपने आप को उसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा इंक्रीज करके उसको देते हो। एंड बाय द वे दे आर वेरी हैप्पी टू पे बैक। मैंने आपको बताया कि 99% तक रिकवरियां इसके अंदर मौजूद है। 1% आपको कहीं मिलेगा कि कोई आदमी ने डिफॉल्ट किया हो, जिसके अपने रीजन हो सकते हैं। ये जो गवर्नमेंट और ये जो डोनर्स होते हैं, अमूमन इनकी सस्टेनेबिलिटी बड़ी क्वेश्चन मार्क होती है। डोनर कब तक आपको सपोर्ट कर सकता है, कितना अर्सा फ्री मनी मिल सकती है आपको? सो समहाउ माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइडर के लिए जरूरी होता है कि वो अपने मॉडल को ऐसा डेवलप करे कि अगर कल को मेरा ये डोनर, मेरी गवर्नमेंट, मेरे पीछे से ये फंड खत्म हो जाए तो कम से कम मैं सेल्फ सस्टेन कर सकूं, इसलिए उनको ये रेट चार्ज करने पड़ते हैं। और अगर आप बहुत अरसे तक सब्सिडाइज करेंगे तो वन वे और दी अदर एक दिन आपको ये सारा प्रोग्राम वाइंड अप करना पड़ सकता है। जनरली इनको जो कॉस्ट पड़ती है वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कॉस्ट प्रोवाइडर्स को ये होती है कि कॉस्ट ऑफ मनी इनको कितने पे मिल रही है, कॉस्ट ऑफ लोन डिफॉल्ट, अगर लोन डिफॉल्ट हो जाए तो क्या पे ऑफ करना पड़ेगा, और थर्ड कॉस्ट ये है कि ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है इसको मिनिमम किया जाए। सबसे बड़ी कॉस्ट ऑपरेशनल कॉस्ट आ जाती है। बहुत सारे ऐसे माइक्रो फाइनेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने एप्लीकेशन बेस्ड क्लाइंट असेसमेंट रखी हुई है।
उनके फॉर्मल बैंक ब्रांचेस नहीं है उन लोगों की, उनका कोई फिक्स्ड एक्सपेंडिचर नहीं है, उन्होंने बड़ा लिमिटेड सा स्टाफ रखा हुआ है, और वो भी जो स्टाफ है वो ज्यादातर काम कर रहा है आपकी आईटी बेस्ड टेक्नोलॉजी के साथ। सो उन्होंने क्या किया है कि टू रिड्यूस दीज कॉस्ट, उन्होंने अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को तकरीबन नलिफाई कर दिया है। सारा काम आपका एप्लीकेशन से हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा आपके सिस्टम की कॉस्ट है या एप्लीकेशन की कॉस्ट है, आपकी क्लाइंट असेसमेंट इसके ऊपर हो रही है, कलेक्शन इसके थ्रू हो रही है, इवन लोन डिस्बर्समेंट इसके थ्रू हो रही है। अगर आपको इजी पैसा से लोन मिल जाता है तो यू डोंट इवन नीड अ चेकबुक, तो चेकबुक के भी भाई 100-200 रुपए लगते हैं, वो भी नहीं लगेंगे इसके अंदर, राइट। आपकी क्लाइंट आपको एक डॉक्यूमेंट साइन करना है वेरिफिकेशन का, डॉक्यूमेंट भी प्रिंट होगा तो वो 1 रुपया तो फोटोस्टेट वाला भी ले लेता है, अब वो प्रिंट करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज आपकी सारी वेरिफिकेशन थ्रू टेलीकॉम हो रही है, थ्रू वेरिसस हो रही है। तो जितने सिस्टम बन चुके हैं उसके बाद ये कॉस्ट बहुत हद तक अब कम हो चुकी है। गवर्नमेंट का रोल क्या होता है? गवर्नमेंट का रोल जी हमेशा से ये रहा है कि गवर्नमेंट ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करे कि लोग बिजनेस में आए और ज्यादा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस खुले। पाकिस्तान के अंदर अभी ये काफी ग्रोथ हुई है इसके अंदर, और 26 एंटिटीज इस वक्त हमारे पास काम कर रही हैं विद वेरी गुड पोर्टफोलियो। हमारी गवर्नमेंट ने भी, हमारी गवर्नमेंट से बता ये कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने भी ये इस किस्म के इंसेंटिव्स दिए हैं ताकि हम ज्यादातर लोगों को माइक्रो फाइनेंस की तरफ ला चुके हैं। और अब आप देखो तो फिर बहुत सारे बैंक्स भी स्टेट बैंक के अंडर काम कर रहे हैं और बहुत सारी एनबीएफसी एसएससीपी के अंडर काम कर रही हैं। जितना एनजीओ सेक्टर है उसको रेगुलराइज कर दिया गया है ताकि ये चीज खत्म हो सके और हम माइक्रो फाइनेंस को प्रमोट कर सकें। दो तरह के पाकिस्तान के अंदर आपको मिलेंगे। अगर आप माइक्रो फाइनेंस बैंक्स की तरफ जाओ तो जैसा मैंने आपसे कहा कि स्टेट बैंक आपको रेगुलेट करेगा, और अगर आप माइक्रो फाइनेंस कंपनी बनाते हो तो इसको हम नॉन बैंक माइक्रो फाइनेंस कंपनीज कहते हैं, एनबीएमएफसीज कहते हैं, जिनको एससीसीपी रेगुलेट करता है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे पास आते हैं, मेरा ज्यादा फोकस जो है क्योंकि मैं एससीसीपी से हूं तो मैं आपको एससीसीपी के हवाले से बताऊंगा। हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज रूल्स हैं 2003 के जो इसको गवर्न करते हैं, और इसकी ऑपरेशनल साइड को देखने के लिए हमारे पास एनबीएफसी रेगुलेशंस हैं। सो इन रूल और रेगुलेशंस के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में रहते हुए कोई भी माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइडर जो है वो काम कर सकता है। एज पर हमारी जो रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स में जो एनबीएमएफसी की डेफिनेशन मौजूद है उसके मुताबिक कोई भी कंपनी जो कि एनबीएफसी के तौर पे पाकिस्तान में रजिस्टर हो, हमसे लाइसेंस ले, सिर्फ वही एलिजिबल होगी कि वो माइक्रो फाइनेंस का काम कर सके। माइक्रो एंटरप्राइज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि क्योंकि हमने आपको बताया कि शुरू में माइक्रो फाइनेंस सिर्फ पुअर लोगों को देना होता है या माइक्रो एंटरप्राइज को देना होता है। अगर आप इससे ऊपर निकल गए तो फिर आप माइक्रो फाइनेंस की कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे। इसी तरह माइक्रो एंटरप्राइज का मतलब ये है एनी मींस प्रोजेक्ट और बिजनेस इन ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एग्रीकल्चर दैट लीड टू लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट एंड इनकम जनरेशन undertaken by micro entrepreneurs who are either self-employed or employ few individuals not exceeding 10 से कम लोग के दरमियान अगर आपका सेटअप है तो आप माइक्रो एंटरप्राइज की डेफिनेशन में फॉल कर सकते हैं। पुअर पर्सन कौन होता है? हमारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के मुताबिक हर वो आदमी जिसकी एनुअल इनकम एक्सक्लूडिंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अ ईयर इज लेस देन और इक्वल टू 600,000 रुपीज, 6 लाख रुपए की बात कर रहे हैं सालाना। अगर आप मंथली देखो तो 50,000 रुपए बनती है। अगर आप 50,000 की कैटेगरी में कोई फॉल करता है तो हम उसको कहते हैं, हमारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के मुताबिक वो पुअर पर्सन की डेफिनेशन में आता है। इसकी हम बात कर चुके हैं क्लाइंट्स में। अब क्लाइंट्स के अलावा अब देख लेते हैं कि कौन ऐसा है जो कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बना सकता है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए, माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस में आने के लिए आप अगर सेक्शन 42 में एससीसीपी के साथ रजिस्टर्ड हैं तो बहुत सारी सेक्शन 42 की जो कंपनीज हैं वो माइक्रो फाइनेंसिंग के बिजनेस में हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक सेपरेट जो हमारे यहाँ का सिस्टम है उसमें एक एनबीएफसी इनकॉर्पोरेट कराइए, उसके लिए हमारे पास फॉर्मेशन के लिए आइए, हम आपको अलाउ करेंगे आप कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के हमसे लाइसेंस ले लीजिए। जब आप एससीसीपी से लाइसेंस ले लेंगे तो आपको इजाजत मिल जाएगी कि आप एनबीएमएफसी का काम एज अ लाइसेंस एंटिटी कर सकेंगे। उसके अपने फायदे हैं क्योंकि जब आप एंटिटी बन जाते हो, एक रेगुलेटेड सेक्टर का पार्ट बन जाते हो तो उसके अपने बेनिफिट्स हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप ये लाइसेंस लेना चाहते हो तो इसका जो फी है वो 3,75,000 रुपए है जो आप पे करते हैं। इसके अलावा आपको जो लाइसेंस दिया जाता है उस लाइसेंस को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विसेज का लाइसेंस। हमारे यहाँ डिफरेंट लाइसेंसेस मौजूद हैं, उनमें से माइक्रो फाइनेंस एक चीज है, लीजिंग है, हाउसिंग फाइनेंस है, इसी तरह इन्वेस्टमेंट सर्विसेज का होता है। तो अगर आप
एक फुल फ्लेज लाइसेंस हमसे लेना चाहें जिसमें तमाम एक्टिविटीज शामिल हो, जिनमें लीजिंग, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विसेज, माइक्रो फाइनेंसिंग, डिस्काउंटिंग और हाउसिंग, ये 5 सर्विसेज का शामिल हो जाएंगी इसके अंदर, तो आप 100 मिलियन का एक लाइसेंस हमसे डायरेक्ट भी ले सकते हैं। पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का अगर आप ओवरव्यू देखें, ये इनका एक वेबसाइट, इनका एक समझ लीजिए इनकी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जिसको हम PMN कहते हैं, पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क। इसमें तमाम एंटिटीज मौजूद हैं। उन्होंने जो 2018 तक की जो रिपोर्ट बनाई है, अगर आप इसको देखें तो हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर जो बोरोवर्स थे 2014 में सिर्फ 2.8 मिलियन बोरोवर्स थे, 28 लाख लोग माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री को एक्सेस कर रहे थे, और फ्रॉम 2014 टू 2018 ये 6.7 मिलियन तक चले गए। अब 67 लाख लोग इसके अंदर आ रहे हैं, और इसका जो टारगेट है वो इससे भी ऊपर है। तो आप देख रहे हो कि कंटिन्यूअसली हमारा पोर्टफोलियो का जो है साइज वो भी इंक्रीज हो रहा है, एक्टिव बोरोवर्स भी बढ़ रहे हैं, ब्रांचेस जो हैं पहले सिर्फ 1700 ब्रांचेस थी, अब पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 4100 ब्रांचेस हैं जो कि माइक्रो फाइनेंस में, सिर्फ माइक्रो फाइनेंस में प्योरली डील करती है। स्टाफ स्ट्रेंथ बढ़ रही है, 19,000 एम्प्लॉइज जो थे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहे थे 2014 के अंदर, और अब 2018 के अंदर हमारे पास पाकिस्तान के अंदर 42,000 एम्प्लॉइज हैं। सो आप देख रहे हो कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री की। डिपॉजिट इंक्रीज हो रहे हैं, टोटल रेवेन्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप टोटल रेवेन्यू देखो, 2014 में रेवेन्यू का फिगर था 24.3 बिलियन ओनली, ये आप देखो तो ये 89 बिलियन तक चला गया है 4-5 सालों के अंदर। सो इट हैज ऑलमोस्ट ट्रिपल्ड। सो 4-5 साल के अंदर इस सेक्टर के प्रॉफिट्स ट्रिपल्ड हो चुके हैं। इसके अलावा आप अगर इनके और डेट की रेशियो देख लो, एसेट्स देख लो, एसेट साइज 100 बिलियन से बढ़ के 426 बिलियन पे जा चुका है। सो ये भी आप देख रहे हो कि 3-4 टाइम्स इसके अंदर भी इंक्रीज आ चुका है। तो इंडस्ट्री की ग्रोथ और इंडस्ट्री की एक्सपेंशन और उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और अभी बहुत सारे लोग आते हैं, कंपनीज आ रही हैं जो कि माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना चाहती हैं। मोस्ट रिसेंट जो हमारा सेक्टर है उसमें अगर आप देखो तो इस वक्त टोटल 26 एंटिटीज हैं जो कि काम कर रही हैं, और टोटल एसेट्स जो कि नवंबर की मैं आपको फिगर शो कर रहा हूँ 19 का, वो 8,075 मिलियन का है, और इसमें 1.36% का प्लस चेंज आया। ये सारी की सारी ग्रोथ नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर ने दिखाई, और ये उसका कुछ इम्पैक्ट था। जिस तरह लोग चेंज हुए, लोगों ने छोटे बिजनेसेस किए, शॉल्स, छोटा एग्रीकल्चर, क्लाइंट्स ने अपनी रीपेमेंट्स कैपेसिटी इंक्रीज कर ली, उनका जो एम्प्लॉयमेंट रेट है उन इलाकों का बढ़ गया, अर्बनाइजेशन कम हुई बिकॉज लोगों को वहीं पे उनके इलाकों में ही जॉब भी मिल रही है, वो अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, अपनी जमीनें भी चला रहे हैं। तो काफी बड़ा इम्पैक्ट जो है वो कम से कम सोशल सेक्टर के ऊपर आया, and beneficiaries as well as the loan providers, they are both happy with the growth and expansion of this business. प्लस जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो काफी सिंपलर है, उसके अंदर काफी ज्यादा फैसिलिटेशन रखी गई है फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छी हो, आपको मालूम है कि इंडस्ट्री के लिए बड़ी ही इंकरेजिंग सी एक चीज होती है। So this is a very brief intro about microfinancing and how microfinance. This is the main body जो कि रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क। ये इनका वेबसाइट का एड्रेस है, इनके ऊपर आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है विच रिलेट्स टू कि इस वक्त माइक्रो फाइनेंस में क्या एक्सपेंशन आ रही है, नए प्रोडक्ट्स कौन से आ रहे हैं, किन किन एरियाज में फोकस कर रहे हैं, एसेट लायबिलिटी क्या चल रही है, हेल्थ में क्या हो रहा है, एजुकेशन में क्या हो रहा है, किस सेक्टर में ज्यादा डोनर है, डोनर्स की क्या प्रेफरेंसेस हैं, रिस्क कौन कौन से चल रहे हैं। सो अपना ये क्वार्टरली रिव्यू भी लिखते हैं, इनके न्यूज़लेटर्स भी आते हैं, इनकी रिसर्च रिपोर्ट्स भी वेबसाइट पे होती हैं। So what you can do is you can do a lot access to all these things through microfinanceconnect.info। आप इसकी वेबसाइट पे जाइए और पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के बारे में फर्दर डिटेल्स अगर आप लेना चाहें तो आप वहां से ले सकते हैं। So that is a very brief introduction of how microfinancing works in Pakistan and the scope which is currently available, how you can make a microfinance company, what are the benefits, what are the risks, and what is the potential of growth, which is obviously tremendous given the situation in our country. So thank you very much. Any questions? सर माइक्रो फाइनेंस से जो आप बात कर रहे हैं कि ये बिल्कुल ही टोटली रिस्क, मतलब रिस्क टेकर एक किस्म के, वो डोनर्स को जो इनके क्लाइंट्स हैं उनको देते हैं विदाउट एनी कोलैटरल, तो वो रिस्क लेते हैं। क्या हम डीएफआई की बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए डीएफआई इज अनदर थिंग। DFIs are development financial institutions governed by State Bank of Pakistan। DFI एक अलग चीज है, ये माइक्रो फाइनेंसिंग है। मैंने शुरू में ये कहा था कि फाइनेंसिंग कन्वेंशन किसी भी कंज्यूमर फाइनेंसिंग हो सकती है, हाउस फाइनेंस है,
गाड़ियों की फाइनेंसिंग आपके पास हो रही है, आपको पर्सनल लोन चाहिए, ये जितनी भी कन्वेंशनल चीजें फाइनेंस की बड़े बैंक्स के थ्रू होती हैं या कन्वेंशनल चैनल्स के थ्रू होती हैं, ये होती हैं सिर्फ बड़े क्लाइंट्स की नौबत तक। एक बहुत बड़ा इकोनॉमी का हिस्सा वो है जो कि फॉर्मल एक्सेस नहीं रखता फाइनेंशियल सर्विसेज को। माइक्रो फाइनेंस उनको हैंडल करने के लिए आया है। मैंने आपको अभी तस्वीरें दिखाई, जिस तरह मैंने आपको पिक्चर दिखा रहा था, वो गांव में कहीं एक छोटा सा जमींदार है या एक खातून है जो कि सिर्फ चादरें बुन रही हैं। ये लोग अगर कहें कि मुझे एक छोटी सी लूम लगानी है, छोटी लूम भी खैर एक बड़ी चीज हो जाएगी, मगर मुझे शायद धागा खरीदना है ताकि मैं 100 चादरों का ऑर्डर पूरा कर सकूं, तो वो 100 चादरों के लिए धागा खरीदने के लिए उनको पैसा चाहिए, और वो पैसा अगर उनको नहीं मिलेगा तो वो 100 चादरें नहीं बना सकेंगी, वो नहीं बिक सकेंगी। तो माइक्रो फाइनेंस ऐसे लोगों की नीड पूरी करने के लिए है। जो डीएफआईज होते हैं वो प्राइमरली आपके डेवलपमेंट साइड के ऊपर जा रहे होते हैं, मगर इसमें हर तरह की चीज शामिल होती है। इसमें किसी को 2 गाय खरीदनी है, उसको एक हल खरीदना है, उसको कुआं गहरा करवाना है, उसको सिर्फ इतने पैसे चाहिए कि उसकी छोटे से इलाका उसमें वो कम से कम पेस्टिसाइड्स करवा सके। ये उन लोगों की नीड्स पूरी करने के लिए आता है जो फॉर्मली फाइनेंशियल मार्केट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये जो मोबाइल लिंक या जियो फोन माइक्रो फाइनेंस, ये उसी की फीचर करते हैं। इन लोगों ने फाइनेंशियल सर्विसेज शुरू की, अब इन्होंने अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक बनाया। अब इनके पास क्योंकि एक्सपर्टीज मौजूद है इन द एरियाज ऑफ आईटी, टेलको, तो इन्होंने क्या किया कि यार अगर टेलीफोन के ऊपर और काम हो सकते हैं तो टेलीफोन पे बिजनेस भी हो सकता है। हम एक एप्लीकेशन डेवलप कर देते हैं, आपका लोन इस पे डिस्पर्स हो जाएगा, आपकी लोन असेसमेंट इस पे हो जाएगी, डॉक्यूमेंट सारे इसमें आ जाएंगे, वो पेपरलेस एनवायरनमेंट जो हम पढ़ते हैं और सुनते हैं वो सारा इसमें आ जाएगा। फिर इसमें फ्रॉड का चांसेस कम है, बिकॉज अगर आपका हर चीज ऑटोमेटेड है तो इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन खत्म हो गई, फ्रॉड, प्रिविलेज, वेस्टेज, एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। इस वजह से वो लोग इसमें आए, उनको अच्छे मिले और उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी और उसके अंदर काम शुरू कर दिया। हमारी अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई, उसमें हम एक बड़े इन्वेस्टर के साथ बात हो रही थी, वो लोग आए थे हमारे पास एंड दे आर इंटेंडिंग टू बिकम टू स्टार्ट ऑफ अ कंपनी एंड दे सेड कि वी आर अ यूएस बेस्ड कंपनी, हाउएवर हमने जो पाकिस्तान का पोटेंशियल देखा दैट इज ट्रेमेंडस एंड वी थिंक कि अगर हम पाकिस्तान में आ जाएं और हम काम करें तो हम इस रीजन में सबसे अच्छा ग्रो कर सकते हैं। सो रिसर्च स्टडीज ये बहुत सपोर्ट कर रही हैं कि ये मॉडल जो है ये आने वाले वक्तों में बहुत सक्सेसफुली काम करेगा आपका। मुर्तजा साहब, एक दो सवाल ऑनलाइन के ले लेते हैं, then we can come back. एक सवाल है, what is the impact of inflation on micro lending and how to cater the adverse effect which will hit the repayment capacity of the micro borrowers? तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? सीन के भी ट्रेंड आया था शायद राइजिंग इन्फ्लेशन का, अभी तक आई थिंक डाउनवर्ड की तरफ है, लेकिन जिन लोगों ने टुवर्ड्स राइजिंग इन्फ्लेशन माइक्रो बोरोइंग की भी थी, obviously it's going to be an adverse impact. तो इसका क्या कोई मेजर्स हैं जो कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन दे रहे होंगे या इन टर्म्स ऑफ द रेगुलेटर ऑफ द स्टेट बैंक, और किस तरीके से वो केटर? देखिए, ये जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, मैंने आपको हमने शायद एक स्लाइड में देखा था कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्ट रेट काफी हाई चार्ज करते हैं, राइट? उसकी 2 बुनियादी वजह होती है, एक तो यही कि कोलेटरल कोई नहीं है इसके अंदर, राइट? what is the limit maximum जो एक बोरोवर ले सकता है फ्रॉम माइक्रो फाइनेंस? वो डिफरेंट है, वो रेगुलेशंस के अंदर स्पेसिफाइड है। मिसाल के तौर पे अगर आपको एक घर पक्का करवाना है, आप गांव में या किसी दूर दराज इलाकों में जाए तो वहां पे पोर्टा की सैनिटरी नहीं लगती, वहां पे स्पेनिश टाइल्स नहीं लगती, उसको सिर्फ अपना मुझे कहते हैं ना वेड़ा पक्का करना है उसने अपना, तो वहां पे मैक्सिमम लिमिट जो हमने मिसाल के तौर पे हाउसिंग की मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, किसी ने अपना घर 1 कमरे से 2 कमरे करने या उसने अस्तबल को मुकम्मल करना है तो उसको 1.5 मिलियन तक दिया जा सकता है, राइट? ये मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आप 10,000 का लोन भी ले सकते हैं, 1 लाख का भी ले सकते हैं, 2 लाख का भी, और हाउसिंग के लिए आप 1.5 मिलियन 15 लाख रुपए तक जा सकते हैं। इसका टेन्योर भी थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है, जिस तरह वो सवाल में पूछ रहे हैं कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट, क्योंकि इन्फ्लेशन जब बढ़ेगी तो सबसे बड़ा मसला ये आएगा कि बोरोवर की पेइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। उसके लिए अमूमन ये मैं कह रहा हूं, कई कंपनीज जो होती हैं इतनी अपनी पेमेंट के अंदर इंश्योरेंस फैक्टर ऐड कर लेती है, विदाउट मेंशनिंग द नेम ऑफ अ कंपनी। ये मैं आपको बता रहा हूं हाउ दे ऑपरेट इज, वो एक लोन जब देते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पे एक आदमी ने हाउस लोन उनसे लिया 5 लाख रुपए का। अब आप सोच रहे हो कि 5 लाख में कौन सा घर बनता है? याद रखिए, ये घर वो है जो कहीं दूर दराज के इलाके में उसने 1 कमरे को 2 कमरे को बिल्कुल पक्का कर लिया, तो 5 लाख रुपए वहां के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। उसके ऊपर वो मिसाल के तौर पर उससे 35% चार्ज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ। अब लोन का टेन्योर था 5 साल, वो 5 लाख रुपए 5 साल में वापस होने थे। रीपेमेंट कैपेसिटी उसकी अगर हर्ट होती है
किसी वजह से, तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि उनके लोन को रिस्केड्यूल करते हैं, राइट, और जेन्युइन रीजंस के ऊपर। मिसाल के तौर पे एक आदमी था, वो उसका इन्हिसार इस बात पे था कि मैं अपने जानवर कुर्बानी के करीब बेचूंगा और उससे जो पैसा आएगा उससे मैं लोन भी पे ऑफ कर दूंगा। मेरे पास जानवर मुझे खरीदने के लिए, बछड़ा खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे या बकरे खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे। अब अगर किसी जेन्युइन वजह से कोई ऐसा नुकसान हो गया और हमें लगा कि इस बंदे का नुकसान वाकई जेन्युइन है उस आदमी को, तो उसका लोन रिस्केड्यूल किया जा सकता है, ठीक है, उसको फर्दर टाइम दिया जा सकता है। बिकॉज अगर आप उसको डिफॉल्ट डिक्लेयर कर देंगे तो वो उसका भी नुकसान है और आपका भी नुकसान है, तो उसका लोन रिस्केड्यूल हो जाता है। एक बात तो ये होती है। दूसरा ये होता है कि अगर लोन डिफॉल्ट में, मिसाल के तौर पे खुदा ना खास्ता XYZ साहब का इंतकाल हो गया, 5 साल का लोन था, 3 साल की लोन पेमेंट हो चुकी थी और उनका इंतकाल हो जाता है, 2 साल अभी आउटस्टैंडिंग है, तो ऐसे कई केसेस के अंदर कंपनीज क्या करती हैं कि लोन इंश्योरेंस ले लेती हैं। इंश्योरेंस का फायदा ये होता है कि आपकी ओवरऑल उसके अंदर 500 या 600 रुपए ऐड होते हैं, लेकिन आपका पूरा का पूरा रोड जो आपका लोन है वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड हो जाता है। तो हाउ दे ऑपरेट इज कि 3 साल के बाद अगर किसी का इंतकाल हो गया तो वो जो इंश्योरेंस क्लेम डालेंगे, इंश्योरेंस कंपनी उनको पूरा पैसा वापस करेगी, उसमें से वो अपने 2 साल के पेमेंट जो रह गई थी वो डिडक्ट करेंगे और बाकी 3 साल के पैसे क्योंकि वो ऑलरेडी ले चुके हैं तो वो उसके लीगल हायर्स को वापस कर देते हैं। तो एक तरह की लीगल कवरेज, उनको इंश्योरेंस कवरेज भी मिल रही है, जो लोन ले रहा है उसको भी कवरेज मिल रही है, जो लोन दे रहा है उसका लोन भी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो रहा है, राइट। और ये जो इन्फ्लेशन का प्रेशर है, अगर किसी वजह से किसी को लगता है कि मैं, अच्छा, इनके ऊपर इन्फ्लेशन उस तरह हिट नहीं करती बाय द वे, क्योंकि ये इन्फ्लेशन का प्रेशर हम शहर में बैठे हुए सोच रहे हैं यार मेरी तनख्वाह बढ़ रही, कम हो रही है, परचेसिंग पावर रिड्यूस हो रही है, बिकॉज ये ज्यादातर वो लोग हैं, मैंने आपको मिसाल दी, किसी को 4 बकरे 5 खरीद के उसने डाल दिए कि यार मैं ये मेरी जैसे ही बकरीद आएगी बेच दूंगा, और उसी वक्त में दे। और अगर आप गांव वगैरह में जाओ तो आप देखो उनकी खुशी गमियां जो होती है ना, गमी का तो खैर कोई टाइम नहीं, बट खुशियों का जो टाइम होता है अमूमन फसल कटने पे है, किसी की कोई कुआं है, कोई किसी की जानवर बिकने हैं, किसी की कोई टाइम ऐसे हैं जिसमें उनके, तो ये फेजेस में पे ऑफ कर देते हैं सारे के सारे। तो अमूमन इसमें जो डिफॉल्ट का रेशियो है, मैंने आपको बताया कि 1% 2% मिलता है आपको, वो भी खास सर्कमस्टांसेस के अंदर, अदरवाइज वो लोग नहीं करते इस तरह। अच्छा, एक तो और भी सवाल है, एक तो है कि hasn't microfinancing also become popular among big corporations? Yeah, they are getting interested into this because now what they have realized is कि इस मॉडल ने सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी ली थी बांग्लादेश से, उसके बाद बहुत से मुल्कों में आया, अब बिगर कॉर्पोरेशंस ने भी अपॉर्चुनिटी सीख कर ली, उनको ये समझ आने लगा है कि यार ये काम ऐसा है जहां मेरा डिफॉल्ट, देखिए लेंडर के लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या है, डिफॉल्ट। उनको ये नजर आ रहा है कि ये लोग डिफॉल्ट नहीं करते, करते भी हैं तो बहुत थोड़ा करते हैं, सो नाउ दे आर सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी एंड दे आर ऑब्वियसली वेरी इंटरेस्टेड। डेफिनेटली उनको इस चीज में थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट है, बिकॉज कन्वेंशनल लेंडिंग जो है वो बड़ी कंजर्वेटिव होती है, उसके अंदर आप कोलैटरलाइज करते हैं, चीजें देखते हैं, इसमें कोई कोलैटरल नजर नहीं आएगा आपको, इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा। आम आदमी से अगर ये 10% चार्ज कर रहे हैं तो इनसे 18-20% चार्ज कर रहे होते हैं, बट यू आर श्योर ऑफ के यार काफी हद तक ये लोग पैसे मुझे दे देंगे, सो डूबने का चांस कम है। तो इसकी मॉडल की सस्टेनेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो इसलिए काफी बड़े प्लेयर्स हैं जो इसमें डेफिनेटली इंटरेस्टेड हैं। आप लोग में से कोई सवाल से पूछना चाहे ऑनलाइन क्वेश्चन? जिस तरह आपने मेंशन किया कि इनकी जो है वो इंश्योरेंस जो है एलिमेंट पूरी रेडी होता है, तो इन केस अगर कोई डिफॉल्ट हो जाता है तो उस केस में क्या सीन होता है इंश्योरेंस? डिफॉल्ट का रीजन देखा जाता है, देखिए डिफॉल्ट में मैंने आपसे बताया कि डिफॉल्ट, कई डिफॉल्ट ऐसे हमने इंडस्ट्री में देखे, मैंने आपको मिसाल दी कि जानवर मर गए उसके पास 10 बकरे थे, उसने कुर्बानी के लिए खरीदे कि मैं इसको जिलेज के मौके पे बेच दूंगा, ईद के मौके पे, और उससे पहले एक वबा आई और वो जानवर मर गए। अब वो जानवर जो उसने खरीदे थे वो आपसे 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए लोन लेके लिए थे, ये एक जेन्युइन कंसर्न है, ठीक है। तो देखना पड़ता है, इसमें केस टू केस बेसिस पे भी देखा जाता है, लेकिन क्योंकि इसमें अभी तक जो डिफॉल्ट का रेशियो है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ 1 और 2% है, तो ये उतना बड़ा थ्रेट जितना हम एज्यूम कर रहे हैं ये माइक्रो फाइनेंस लेंडर को नजर नहीं आ रहा फिलहाल, क्योंकि वो ये देख रहा है और स्टेटिस्टिक्स भी ये शो कर रही है कि लोग अपना लोन पे ऑफ कर रहे हैं। विमेन, मैंने आपको बताया एक मेजर पोर्शन इसके अंदर ऐसा है जो कि खवातीन है एंटरप्रेन्योर्स, वो ले रही हैं एंड दे वेरी टाइमली पे ऑफ, वो टाइम पे भी कर रहे हैं, वो सोशल सर्कल में भी बैठे हैं। और फिर जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको अगर याद हो मेरी तीसरी चौथी स्लाइड के अंदर, दिस इज देयर ओनली चांस टू गेट बैक इनटू लाइफ, दे डू नॉट वांट टू मेस अप विद दिस थिंग, इनको वैसे तो मिलेगा नहीं कहीं से पैसा, और अगर ये चांस भी उन्होंने जाया किया तो फिर तो वो बिल्कुल ही, तो मेजॉरिटी लोग जो है इसके अंदर बड़ा टाइमली पे ऑफ करते हैं। हाँ, ऐसे सर्कमस्टांसेस मौजूद है
क्योंकि कोलेटरल भी कोई नहीं खड़ा, तो ऐसा सर्कमस्टांसेस मौजूद है, लेकिन उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। और अगर कोई केस आ जाए तो केस टू केस बेसिस के ऊपर चीजों को रिस्केड्यूल भी किया जाता है। जी, दो क्वेश्चंस हैं। एक अहमद फराज ने पूछा, in recent time we have seen the results of major players of the sector reflects increasing stress on the results due to portfolio quality issues. What are the main reasons for this and what measures are being taken by players to mitigate this effect? पोर्टफोलियो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट, माइक्रो फाइनेंस के हवाले से अगर मैं कहूँ आपको, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बल्कि शायद तमाम लैंडिंग इंस्टीट्यूशन में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है क्लाइंट असेसमेंट। आपने क्लाइंट को असेस करना होता है। माइक्रो फाइनेंस का जो क्लाइंट है वो इनफॉर्मल इनकम ग्रुप का पार्ट है। फॉर्मल पार्ट कौन सा होता है? सैलरीड क्लास। अब फॉर्मल आपका पता है कि भाई ये आपकी सैलरी स्लिप है, ये आपके एसेट्स हैं, आपकी वो सारी चीजें सामने रखते हुए फाइनेंशियल्स को वो आपकी एक कैपेसिटी निकाल लेते हैं। माइक्रो फाइनेंस का जो क्लाइंट है ये फॉर्मल ग्रुप का नहीं हिस्सा होता। अब एक छोटे रेडी वाले की इनकम असेसमेंट करना इज अ फुल फ्लेज आर्ट, राइट? इसके ऊपर हमारी और वर्ल्ड बैंक की और स्टेट बैंक के ऊपर, अभी ये मैं वैसे बता रहा हूं, हम लोग रिसर्च भी कर रहे हैं और इसके ऊपर वी आर ट्राइंग टू कम अप विद अ मॉडल जहां पे क्लाइंट असेसमेंट को स्टैंडर्डाइज किया जा सके कि यार इनफॉर्मल क्लाइंट को असेस कैसे किया जाएगा। अदरवाइज आप खुद देख लीजिए कि एक रेडी वाले को असेस करना बहुत मुश्किल है, हालांकि उसको 15,000 रुपए चाहिए कि आज सुबह वो मंडी से ताजी सब्जी लाके रख सके और वो आज बेच सके, अगर आप उसको 15,000 टाइम पे दे दें, राइट? तो ये जो इनफॉर्मल ग्रुप है ये तो खुद असेसमेंट करते हैं। दूसरा, जो क्योंकि ये लोग रिमोट एरियाज में काम कर रहे हैं, वहां पे सोशल गारंटी का कॉन्सेप्ट है। सोशल गारंटी में आप मुझे जानते हैं, मैं इनको जानता हूं, वो उनको जानते हैं, वो उनको जानते हैं, और हम रहते भी एक ही जगह पर है, और हमारा रहना जीना और हमारा जानवर और खाना पीना हर चीज जुड़ी हुई है। पैसे मैंने भी लिए हुए हैं, तो मेरे पर प्रेशर ये है कि मुझे रिलीज करना है बिकॉज आपने पे करना है, आपने देना है क्योंकि इनको देना है। तो वो जो सोशल बॉन्डिंग है वो एक बड़ा मेजर रोल प्ले कर रही है। अगर आप किसी भी माइक्रो फाइनेंस शुरू के लोगों की हिस्ट्री उठा के देखें, मैं उस दिन नाम में सिर्फ एग्जांपल देने के लिए दे रहा हूँ, इसको प्लीज कहीं कोट उस तरीके से नहीं कीजिएगा। हमारे पास एक बहुत बड़ा है अखुवत, एक बहुत बड़ा हुआ है, अगर आप जाके उनके बारे में पढ़िए, पहला लोन जो उनके ओनर ने कभी ओनर से जिन्होंने शुरू किया, उन्होंने जाती तौर पे किसी खातून को दिया था। इट्स अ गुड स्टोरी टू टेल। और वो खातून आई थी और उन्होंने जो कुछ कहा उन्होंने उनको दिया, और वो खातून टाइम पे उनको पैसे भी वापस कर दिए, बल्कि प्रॉफिट भी देके गई। सिमिलरली ये जो डॉक्टर यूनुस थे, इन्होंने भी जो पहला लोन दिया था वो $24 का पर्सनल लोन दिया था। एंड देन दिस आइडिया क्लिक टू हिम कि यार अगर लोगों को टाइम पे थोड़े भी पैसे मिल जाए ना तो वो अपना काम चला लेते हैं, और वो फिर ग्रामीण बैंक में कन्वर्ट हुआ। तो ये मॉडल जो है ये क्योंकि अभी लोगों को जरा समझ में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप रिमोट एरियाज में निकलें तो आपको ये ऑटोमेटिकली समझ आने लगेगा, बिकॉज वहां का लाइफस्टाइल जो है ये उसके मुताबिक डिजाइन हुआ है। ये फॉर्मली IFRS के स्टैंडर्ड्स पे डिजाइन नहीं हुआ हुआ। इसके लिए कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए अगर मैं आपसे कहूँ यार इसके एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स लेकर आओ और वो, तो शायद आपको उस ऑडिट होता है, इनका कंप्लायंस भी होता है, ये रेगुलेशंस को भी फॉलो कर रहे होते हैं, मगर इनके लिए वो वाले स्टैंडर्ड्स नहीं है जो कि आम नॉर्मल लैंडिंग के अंदर किए जाते हैं। दो शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। एक फातिमा असगर का है, will statutory audit be applicable for microfinance companies? एक ये सवाल है। दूसरा है शमीन गफार का, I would like to ask for a newly formed e-commerce store, is it possible to get a microfinance loan? तो दो सेपरेट सवाल, पहला वाला अगर मैं आपको बता दूं, will statutory audit be applicable for microfinance companies? जो है उनके लिए तो होता है, वो लोग अपना ऑडिट भी करवाते हैं, अपनी रिपोर्ट्स भी सबमिट करते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास लिमिट है कि अगर आप 5,000 क्लाइंट आपके हो चुके हैं तो you need to have a license from SCCP, आप उससे ऊपर नहीं कर सकते। इनकी रिक्वायरमेंट्स इसलिए भी डेवलप हो रही हैं बिकॉज अगर आपको ऑडिट नहीं है तो ये AML CFT FATF आप लोग सुन रहे होंगे, उसका काफी इम्पैक्ट है। तो आप अपने तमाम सेक्टर्स जिनमें माइक्रो फाइनेंस भी डेफिनेटली शामिल है, उनको आप सुपरविजन और कंप्लायंस से तो बाहर नहीं कर सकते। तो ये तो चीज इंपॉर्टेंट हो गई। दूसरा सवाल जो उन्होंने किया वो e-commerce store, for a newly formed e-commerce store, is it possible to get a microfinance loan? आपने माइक्रो एंटरप्राइज की अगर डेफिनेशन देखी हो तो अगर आप, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस सिर्फ उनको मिल सकता है या तो पुअर पर्सन हो या माइक्रो एंटरप्राइज हो। पुअर पर्सन आपकी 6 लाख सालाना आमदनी, 50,000 रुपए की इनकम, आप उस कैटेगरी में अगर हैं तो चेक योरसेल्फ, फिर आप एलिजिबल होंगे। नंबर 2, अगर आप माइक्रो एंटरप्राइज के अंदर फॉल करते हैं, यानी कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपके एम्प्लॉयज लेस देन 10 है, तो आप, ये तो जेनेरिक दो बातें हैं जो कि मैंने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से बताई। टू गेट अ मोर स्पेसिफिक रिप्लाई, आई वुड सजेस्ट कि बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, ये उनमें से किसी से राब्ता करें, वो लोग इनको असेस करेंगे कि वेदर इनको लोन, आप इनको मैडम को या सर को लोन देना है या नहीं देना। क्लाइंट असेसमेंट उन्होंने करनी है। सो फॉर अ मोर स्पेसिफिक आंसर आई वुड सजेस्ट कि ये उनसे बात करें। ठीक है, आप
सर माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो आपने कहा माइक्रो एंटरप्राइज, इसमें सिर्फ शब्द जो है वो एम्प्लॉइज का या रेवेन्यू वगैरह आजकल सिर्फ एम्प्लॉयज का फिलहाल की हद तक, कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपने बनाया, आप अपना काम खुद कर रहे हैं, थोड़ा पैसा आपको चाहिए, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ ना, आप समोसे बहुत अच्छे बनाते हैं, आपको लगा यार मैं समोसे बेचने का काम तो करके देखूं, लेकिन अभी समोसे बनाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है, और अच्छे समोसे जिसमें अच्छी क्वालिटी की चीजें डाली हुई हो आपने, चीज समोसा मार्केट में बेचूं मैं, अच्छी बिरयानी बना सकता हूं मैं, ये आप जरा थोड़ा सा उस साइट को जाके देखो जो ठेले पे छोटी सी दुकान खोल के बैठा हुआ है, मगर उसके पास बहरहाल कोई ना कोई आइडिया, और वो ऐसा कर सकता है जो कोई और नहीं कर रहा। समोसे में वो चटनी उसकी इतनी अच्छी होती है कि लोग समोसे खाने चले जाते हैं। आपको अगर 50,000 रुपए का लोन मिल जाए तो आप एक इतना सेटअप कर सकते हो जिसमें 5 कुर्सियां 8 रख के एक वक्त में समोसे तल सकते हो, घी अच्छा लगा सकते हो, साफ सुथरा माहौल दे सकते हो, लोग शायद आपकी तरफ आने लगे, और 50,000 का लोन आपके पास होगा, वो आपकी माइक्रो एंटरप्राइज में भी आ सकती है। आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो, आपने 2 लड़के रख लिए, 10 के अंदर अंदर रहते हुए अगर आप काम कर रहे हो तो यू आर अ माइक्रो एंटरप्राइज। बेशक आपके एसेट जितने भी हो, मिलियंस। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चंस एक अकाउंटेंट के जहन से आ रहे हैं। आप लोग अकाउंट बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, लेकिन मैं आपसे फिर वो कह रहा हूँ, समोसा ही उसका भाई इन्वेंट्री है, घी उसकी, आलू उसकी इन्वेंट्री होंगे, उसकी वैल्यूएशन आप करेंगे, स्टॉक टेक करेंगे आप, भाई आज तेरे अकाउंट में कितने समोसे बगैर तले हुए, कितने तल के सेल कितने हो गए, ये तेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ये और निकाला, ये मेरा कॉस्ट प्रॉफिट हो गया तेरा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तेरे कितने, ठेले का किराया तेरा कितना है, वो चीजें जो है ना वो अभी, क्योंकि देखो इनका लेवल बहुत थोड़ा होता है जिनको आप आगे फर्दर लैंड कर रहे होते हो, तो ये सारी क्लाइंट असेसमेंट जो है, जिस तरह मैंने उनको सजेस्ट किया पिछले क्वेश्चन में, स्पेसिफिकली आप जाके अपनी एप्लीकेशन पुटअप कीजिए किसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के साथ, लेकिन प्लीज उनके साथ पुटअप कीजिए जो लिस्टेड है, जिनको लाइसेंस एससीसीपी ने दिया हुआ है, उनके पास जाके पुटअप कीजिए, वो आपको इवैल्यूएट करेंगे कि क्या आप एलिजिबल हो, अगर आप एलिजिबल हो वो आपको लोन डिस्पर्स कर देंगे। क्लाइंट असेसमेंट उनका काम होती है। एक शरिया कंप्लाइंट इस्लामिक एवेन्यू के हवाले से एक सवाल है कि does any Islamic finance concept work in this business model? Yeah, why not Please actually? elaborate. Yeah, why not actually? मैं इस्लामिक में आपको बताऊं, हमारे पास माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, they are working on कर्ज हसना basis, zero interest rate, they lend you some money and they do not charge anything. Sure. Yeah. So how they Exactly. मतलब how do they earn revenue profit? मतलब किस तरीके से meet करते हो? अपने expenses कैसे meet करते हैं? मेरी अगर शुरू की स्लाइड्स अगर आप देखो, उसमें मैंने बताया था कि जो ये सबको नजर आ रही होगी, आई बिलीव, जी बिल्कुल ठीक है। लेट मी गेट बैक टू दिस पॉइंट जहां मैंने कहा था कि इनका स्ट्रक्चर, माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइडर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। आप ये देखो, मैंने आपको बताया था कि इफ यू लुक एट द ओनरशिप स्ट्रक्चर्स, कि गवर्नमेंट ओन भी हो सकते हैं, सोशल भी हो सकते हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, नॉन प्रॉफिट भी हो सकते हैं, ये किसी भी कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। अब आपका ये सवाल कि अब इनका फोकस क्या होगा, उनको पैसा मिल रहा है पीछे लेंडर से। आपको पता है दुनिया भर के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो पैसा देते हैं फॉर सोशल डेवलपमेंट पर्पसेस। कन्वेंशनली क्या होता था, अगर आप हिस्ट्री देखो, गवर्नमेंट से काम खुद किया करती थी, फलाह बहबूद का, सोशल डेवलपमेंट गवर्नमेंट का टास्क हुआ करता था, लेकिन उसमें क्या होता था, इनएफिशिएंसीज, राइट, उसमें इनएफिशिएंसीज आ जाती थी। दुनिया ने टर्न अराउंड लिया, उन्होंने कहा यार गवर्नमेंट सिर्फ माहौल बनाए, लेट द प्राइवेट सेक्टर जंप इन, हम इसको ऑफिशिएंटली मैनेज करेंगे। गवर्नमेंट के पास लोन्स आए, गवर्नमेंट के पास पैसा आया, ग्रांट्स आई, उन्होंने आगे दिया इंस्टीट्यूशंस को, इंस्टीट्यूशंस ने आगे लेंडिंग शुरू कर दी, बट नाउ दे आर मैनेजिंग इट मोर एफिशिएंटली, राइट। अब सस्टेनेबिलिटी की जो बात है कि जब वो कमा नहीं रहे तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया हुआ कि अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट बिल्कुल की हुई है जीरो, और कर्जे हंसना वो दे रहे हैं, और उनको कर्जे हंसना क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उनको कॉस्ट ऑफ फंड भी जीरो पड़ रही है, उनको जो मिल रहा है वो डोनर दे रहा है। और मेरी स्लाइड में अगर किसी जगह, एक दो जगह मैंने मेंशन किया था कि इनकी व्हाई डू दे चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट्स, ये अगर आप मेरा थर्ड बुलेट देखो कि इफ द माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइडर्स दे कंटिन्यूअसली सब्सिडाइज देयर बोरोवर्स विल डीकैपिटलाइज देमसेल्व्स अनलेस दे कंटिन्यू टू रिसीव न्यू सब्सिडीज। सो ये हमने इसीलिए मेंशन किया मैंने कि द प्रॉब्लम हमेशा ये रही है, द प्रॉब्लम इज दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फ्रॉम डोनर्स एंड गवर्नमेंट मनी आर नॉट रिलायबल। जब तक आ रहे हैं तब तक आपका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है, आप जीरो इंटरेस्ट रेट चार्ज करो, कोई कमाओगे कुछ नहीं, बट द मोमेंट पीछे से लाइन ड्राई अप होगी, आपका सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चनेबल हो जाएगी। इसीलिए आप ये देखें, मैंने जो हमारी हेडिंग थी वो थी व्हाई डू माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइडर्स चार्ज
हायर इंटरेस्ट रेट्स वो इसीलिए चार्ज करते हैं। क्यों भाई, कोलेटरल कोई ले नहीं रहा, ऑपरेशनल कॉस्ट मैंने कम की भी है, लेकिन मुझे अपने आप को सस्टेन करना है। कल मेरा पीछे से अगर ये डोनर चला जाता है या पीछे से गवर्नमेंट फंडिंग खत्म हो जाती है तो मेरा तो इंस्टीट्यूशन ही कोलैप्स हो जाएगा। तो उस सारे को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो फॉर प्रॉफिट बेसिस पे काम कर रहे हैं, और कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो नॉन प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं। सो इट इज योर बिजनेस मॉडल। इफ यू थिंक कि आप नॉन प्रॉफिट के ऊपर सस्टेन कर सकते हो, यू कैन ऑप्ट दैट। इफ यू थिंक नहीं यार हमें तो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाइए और हमें वो चाहिए, तो फिर आप प्रॉफिट कमाइए, जरूर प्रॉफिट लीजिए आप उसके ऊपर, और बहुत सारी कंपनीज ले रही हैं। नासिर खान का एक सवाल है कि is it correct that when we add insurance to the loan it becomes credit default swap, and if this is the way the financial crisis also came for this reason back in 2009, how would you see that? Any comment on that? नॉट सीरियसली, मतलब वो ठीक है कि उन्होंने उसको देखा, लेकिन इसके लेवल पे ये होना बहुत कम चांस है। उसकी वजह ये होती है इसकी जो टिकट साइज है वो बहुत छोटा है। लाख रुपए के लोन के ऊपर डिफॉल्ट, वो भी कवर्ड। हाउसिंग के अंदर 15 लाख रुपए का मैक्स लोन दे सकते हो आप, हमारे रेगुलेशन में लिखा है इससे ऊपर नहीं जा सकते आप। 15 लाख रुपए का लोन डिफॉल्ट आपके पोर्टफोलियो में क्या फर्क डालता है? तो वो बिगर स्केल का डिफॉल्ट जो ये देख रहे हैं, जिस तरह हमने पुराने क्राइसिस से देखा, वो थ्योरेटिकली तो शायद, मैं फिर वही कहूंगा, थ्योरेटिकली तो शायद कुछ भी पॉसिबल हो। लाइक अगर मैं आज ये कह रहा हूँ कि 1% डिफॉल्ट रेट है, कल को 90% डिफॉल्ट हो जाए तो आप कहेंगे सर ये सारी बातें ठीक हो गई। तो थ्योरी में तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग 15 लाख रुपए का डिफॉल्ट, और वो तो बहुत कम लोग लेते हैं। 2 लाख रुपए लिए, 3 लाख रुपए लिए, वो भी इंश्योर्ड है, जिसके अंदर 500 रुपए इंश्योरेंस के भी पड़े हुए हैं, आप इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो। आप भाग भी गए तो कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे देगी। प्लस एक चीज और ये कीजिएगा, इंश्योरेंस कंपनी अपनी ड्यू डिलिजेंस खुद करती है, तो जब वो आपका लोन इंश्योर करेगी तो वो अपना ड्यू डिलिजेंस का पार्ट अपना भी प्ले कर रही होगी। सो इट्स अ डबल चेक सॉर्ट ऑफ अ थिंग। इस तरह से आपको का कोई इंटरेस्ट रेट कितना होता है इस पे? माइक्रो फाइनेंस बैंक नॉर्मली कितना चार्ज करते हैं? काफी हो सकता है, मैं को रेट को फिगर कोड नहीं करना चाह रहा, लेकिन काफी हो सकता है, ये बैंक से ऊपर होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन मैं आपको फिर ये देखिए लिखा हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, राइट। माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे तमाम माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट मौजूद है, उनसे राब्ता करके आप एग्जैक्ट फिगर, मैं अपनी प्रेजेंटेशंस में फिगर्स कोट करते हुए बड़ा मोहतात रहता हूँ कि लोग समझे सर ने कह दिया था 12% होता है, हम मार्केट में गए वो तो 12.5 है, तो ये तो इन्होंने गलत प्रेजेंट कर दिया। तो टू बी वेरी स्पेसिफिक मैं चाहता हूँ आप लोग उन इंस्टीट्यूशन से डायरेक्ट राब्ता करें, वो आपकी असेसमेंट करके आपके साथ एक लोन का एक इंटरेस्ट का एक फैक्टर डेवलप करेंगे कि आप कहाँ फॉल करते हैं। लेकिन कोलेटरल कोई नहीं है तो थोड़ा सा आप भी ध्यान में रखें कि आप थोड़ा हायर लोन पे कर रहे हैं, हायर इंटरेस्ट रेट पे कर रहे होंगे। नबील अब्बास ने सवाल पूछा है कि in your opinion do you see better opportunities in the microfinance industry, specifically I think microfinance banks, as we see a lot of people switching from the commercial banking segment towards the microfinance institutions. So what is your opinion on that? अगर आप मेरा ये स्लाइड देखो जिसपे मैंने कुछ फिगर्स कोट किए थे, ये माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क की जो कि इनकी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है तमाम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की, ये उनका सेक्टर रिव्यू है, 2018 तक का है, अभी 19 का अभी बना रहे हैं वो लोग, बट ये आपको एक अच्छा आइडिया दे देगा इनके सवाल के साथ। आप अगर सिर्फ ग्रोथ देखो तो एक्टिव बोरोवर्स 2.8 मिलियन से 6.7 हो चुके 4 साल के अंदर। उसके बाद अगर एसेट बेस देखो तो 100 थी, वो जाके 426 हो चुकी है। अगर आप प्रॉफिट्स की तरफ चले जाओ, रेवेन्यू पे चले जाओ, तो 2014 में जो रेवेन्यू था वो 24 था और बिलियन था, और अब जाके वो 89 बिलियन पे खड़ा, इट्स ऑलमोस्ट ट्रिपल्ड। तो डेफिनेटली ये फिगर्स भी ये शो कर रहे हैं कि स्विच है। दो वजूहात, टेक साइज छोटा, रिस्क कम, कोलेटरल कम, दूसरा छोटे लेवल को अब उठाना पड़ेगा क्योंकि बड़े लेवल पे दुनिया भर में एक्टिविटीज कम हो रही है। तो जो आपका वो जो अंडरसर्व्ड स्टार्टर है उसको अपलिफ्ट करने की जरूरत है। तो बहुत से बड़े प्लेयर्स जो हैं वो इस तरफ मूव हो रहे हैं, और मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि हमारी एक बड़े फंड के साथ बात हुई है जो कि बाहर से ताल्लुक है उसका, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हमसे मिले और हमने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि वी सी ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी पर्टिकुलरली इन दिस एरिया। So now let's see if they come and if they invest, definitely they are coming up with their own homework, और वो उनका इतना सपोर्टिव है कि they have approached us कि सर हम इसमें आना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। एक मेरा वैसे सवाल तो शायद कमेंट ही होगा। I think माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर खासतौर पर इन लास्ट 4-5 इयर्स अगर आप देखें तो
the way they have invested so much towards the digitalization of things. Hypothetically, I say examples like share करें, Easy Paisa, Jazz Cash, how they have made digital payments so convenient for multiple stakeholders over here. तो I think वो भी एक segment है जिसकी वजह से काफी ज़्यादा ease of doing business के हवाले से बिल्कुल micro lending भी हो गई है, you can digital payments वाले से segment है. I think that will also contribute more towards the economy and the entire segment as well. It has primarily reduced the operating cost. Absolutely. Right? आपको lending में 3 cost है ना, आपको cost of fund आपका पड़ता है, आपको default को account for करना है और operations को देखना है. Operational cost इसमें building, किराया, employees, rent सब खत्म. Everything is on your paperless environment without any human intervention. Less chances of fraud, easy accountability, you can track, you can log everything. So ये जो IT ने एक बड़ा रोल प्ले किया है उसमें वाकई ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि इसने बहुत ज्यादा लोगों को पुश किया कि यार अब मैं अगर लोन के लिए मुझे बैंक भी नहीं जाना और मैं जाके किराने वाले से इजी पैसा से अपना लोन ले सकता हूँ तो I mean, और मुझे कहीं जाने के लिए जमा कराने के लिए भी इजी पैसा मैं लोड कराऊंगा तो कहीं जैज कैश के थ्रू कहीं पे हो जाएगा और क्या चाहिए. और ये भी नहीं कि ब्रांच बंद हो गई, ईद का दिन है, छुट्टी है, रात है, दिन है, मेरे पास आज पैसे आए, मैंने रात 2 बजे भी जाके आपका लोन पे कर दिया तो लोन पे हो गया और मुझे सुबह पैसे चाहिए तो सुबह 4 बजे भी लोन क्रेडिट हो सकता है मेरे पास. तो थिंग्स हैव डेफिनेटली डेवलप्ड. ये आईटी का फिनटेक, द अपकमिंग बिग थिंग इज फिनटेक. और सर हम इस स्लाइड से देख रहे हैं मतलब क्वेश्चन तो और है मेरा, लेकिन साथ में अगर हम देख रहे हैं तो एक्टिव बार्बर्स बढ़ रहे हैं, हमारे एम्प्लॉइज बढ़ रहे हैं, इट मींस के ब्रांचेस भी बढ़ रही होगी क्योंकि ये लोग एक्सपेंड कर रहे हैं और आप पाकिस्तान में बिल्कुल तो रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, उनका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है जितना भी है. लेकिन उसमें अगर हम देख ले तो एक्चुअली इनका रेशियो क्या है, आप एक माइक्रो फाइनेंस ऑब्टेन करने में मिनिमम और मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा क्योंकि बहुत कम. वो चीज मेंशन नहीं हो रही क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे एक ये असल में उसके लिए है भी नहीं, ये उसके मकसद के लिए नहीं बनाया गया, ये सेक्टर का ओवरव्यू है. वो जो आप लोन टाइम देख रहे हो ना कि भाई अप्लाई करने से लेके तो मुझे उसमें मिनिमम और मैक्सिमम टाइम कितना लग रहा है, वो टाइम आम उससे बहुत कम है. अगर आप एक लोन प्रोसेसिंग की रेगुलर दरखास्त डालते हो किसी जगह उससे बहुत ज्यादा निस्बतन कम. क्योंकि सर मैं एनसीपी में रह चुका हूं तो वहां पे मैंने देखा है कि अगर आप एक लोन एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं तो मिनिमम 3-4 महीने लग जाते हैं, मे भी साल भी लग जाए. ये बहुत कम है भाई, ये बहुत कम है. इसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट है, इसका देखो इसका स्कोप डिफरेंट है, इसकी नेचर डिफरेंट है, इसका यूजर डिफरेंट है, इसका लेंडर डिफरेंट है. लेकिन यूजर भी बड़ा हाई रिस्क है अगर आप देखा जाए अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से. कोई कोलैटरल नहीं है, एक आम बंदा है, हाँ वो कह रहा है कि मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, हाँ हम उसको दे रहे हैं, हाई रिस्क. आप उसकी असेसमेंट करते, आप उसकी आप उसको देते हैं, एग्जैक्टली आप ड्यू डिलिजेंस करते हैं, आप उसको असेस करते हैं, अगर वो इस काबिल होता है आप उसे लोन दे देते हैं और मजे की बात है कि वो लोन पे भी कर देता है. एज फार एज वो पे कर रहे हैं तो ना लॉयर्स कुछ कर सकते हैं, ना अकाउंटेंट्स कुछ कर सकते हैं, ना मैनेजमेंट कुछ कर सकती. आपने पैसा दिया, वो पैसा वापस आ गया, दैट्स इट. असेसमेंट गलत थी या सही, अप्रूव हो गई कि सही थी. और अगर आप रिकॉर्ड उठाओगे उसमें कहोगे यार आज तक 1% का डिफॉल्ट है मेरा, तो मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं कर सकेगा, ऑडिटर भी कुछ नहीं करेगा, सैंपल में भी नहीं आएगा आपके ऑडिट के. सो 99% रिकवरियां हैं इसके अंदर. चलिए आई थिंक लास्ट एक क्वेश्चन हम लोग फिर ले लेते हैं. आप उनके इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एक आखिरी ऑनलाइन क्वेश्चन ले लेते हैं आप अगर पहले पूछना चाहें. और आखिरी क्वेश्चन है नासिर खान का फ्रॉम रिपोर्टिंग ऑडिट एंड कंप्लायंस पर्सपेक्टिव what are the key regulations to comply in a micro business, in setting up a micro business? I think थोड़ा सा इसमें clarity वैसे चाहिए होगा, लेकिन I think from an audit and compliance perspective, what are the key regulations to comply in a business? नासिर इसमें तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैंने आपको बताया था अपनी स्लाइड में कि इसका जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो एनबीएफसीज में हमारे एनबीएफसी रेगुलेशंस के अंदर कवर्ड है, एनबीएफसी रूल्स एंड एनबीएफसी रेगुलेशंस. अगर आप एनबीएफसी रेगुलेशंस में जाओ तो एनबीएफसी रेगुलेशंस के अंदर लेंडिंग एनबीएफसीज का एक पूरा वो दिया हुआ है कि ये क्या करती हैं, क्या इन्हें करना होता है, कितने दिन, वो जो भी कंप्लायंस के हवाले से वो पूछ रहे हैं तो वो सारी डिटेल्स आपको उसमें मिल जाएंगी. तो अगर आप एनबीएफसी रेगुलेशंस 2008 जो कि एसएससीपी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वैसे भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी. ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो है उसमें अकाउंट फॉर हुई है, वो आप उसमें देख सकते हैं. चलिए तो I think we can close this now. Thank you very much once again. Thank you so Thank much. you. Thank you.